So students, today we will be doing the exercise questions of chemical kinetics, the numerical part. 3 marks numericals come from this chapter. Now in first question, you have to find out, determine the order of the reaction and dimensions of the rate constant. Now the order of the reaction क्या होगा, वो तो rate law से हम देख के बता सकते हैं. Just by looking at the rate law, now rate is equals to k raised power 2. So the order is 2, right? Then and the unit of k, you can write it is moles. For a second order reaction क्या होगा, moles per liter minus 1 and per second. That means liters per mole per second. Then this is your second, is your order is 2. Again power is 1 plus 1, so order becomes 2. In same units, liter per moles per second. Then third question, रेट लॉ 3/2 होगा, तो 3/2 के लिए वहाँ n की वैल्यू 3/2 डलेगी, जो हमने नोट्स में न्यूमेरिकल में है ना, यूनिट्स. दैट इज व्हाट, मोल्स पर लीटर 1 minus n per second. जस्ट कैलकुलेट. देन फोर्थ में इसका पावर 1 है, तो ऑर्डर इज 1, एंड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट इज पर सेकेंड. Now for this reaction, this is a typical question, इसलिए यहाँ स्टार लगा हुआ है. This is a different थोड़ा सा है, and typical question, 2a plus b given rise to a to b. Rate law is given to you and k value is given to initial rate. Calculate the initial rate of the reaction when initial concentration इतना है of a and b इतना है, and calculate the rate of the reaction after a is reduced to 0.06 moles per liter. दैट मीन्स 2 पार्ट्स. पहले तो रेट निकालना है, उसके बाद दोबारा निकालना है व्हेन ए को इनिशियल 0.1 से 0.06 चला गया, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन दैट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द रेट लॉ ओनली. नो, रेट लॉ क्या कह रहा है, आर इज इक्वल्स टू सी, आर नॉट इज इनिशियल रेट इज इक्वल टू के ए इंटू बी. के पता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पता है, बी पता है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड दिस इज. And because it is second order reaction, so it has to be liters per mole per second. Now next part पे आते हैं, जब उसका concentration जिसमें 0.1 से 0.06 हो गया, तो initial concentration of air was the same and final concentration is the same. So amount of air reacted, how much of A has reacted, कैसे निकालेंगे, माइनस करके. So this much of A has reacted. अब from the equation, amount of B reacted is equal to half of A. कहाँ से आया ये हाफ ऑफ ए, बिकॉज इफ़ यू सी द बैलेंस इक्वेशन, इक्वेशन में क्या दे रखा है तुम्हें, इफ़ यू सी दिस इक्वेशन, देखो क्वेश्चन में 2a plus b गिव राइज टू दिस, दैट मीन्स a जो है वो b का ट्वाइस है और b जो है a का हाफ है. तो इसका मतलब जितने a ने रिएक्ट किया b उसका आधा रिएक्ट करेगा, राइट. फ्रॉम द इक्वेशन स्टोइशियोमेट्री से मालूम पड़ रहा है, जो b होगा दैट विल बी हाफ ऑफ द a. अब a कितना रिएक्ट किया, वी हैव कैलकुलेटेड, अमाउंट ऑफ a रिएक्टेड इज 0.04, तो जो b रिएक्ट करेगा उसका आधा रिएक्ट करेगा 0.02. अब दैट मीन्स b ने इतना रिएक्ट कर लिया, तो इनिशियली b हमारे पास कितना था, 0.2 था, और इतना रिएक्ट हो चुका है, एंड बचा कितना हमारे पास, हाउ मच लेफ्ट, माइनस करके दिस मच अमाउंट ऑफ b इज लेफ्ट विथ यू. नाउ द न्यू रेट विल बी, वही रेट लॉ तो वही रहेगा, बट यू विल पुट न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर, for new concentration of A and new concentration of B. K की वैल्यू डाला, A डाला, B डाला, and just solve this. So this is your new rate when A has been reduced to 0.06. Very easy question, but थोड़ा सा mind boggling है. Next question, question number 3. Decomposition of ammonia in platinum surface in zero order. Zero order मतलब power is 0. Now what are the rates of production of N2 and H2 if K is given to you? Now you see, if the reaction is zero order, what happens in a zero order reaction, rate is equals to K हो जाता है उस केस में. तो क्योंकि zero order है तो power will be 0, तो anything raised per 0 is 1, तो R is equals to K and K की वैल्यू given है, that means rate is given to you, तो rate इतना हो गया. अब अगर हम average rate निकालें from the equation, rate क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है कम हो रहा है, तो माइनस हाफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम प्लस
नाइट्रोजन विथ चेंज इन टाइम प्लस 1/3 डेल्टा H2 विथ चेंज इन टाइम। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये निकालना है। तो रेट इज इक्वल टू ये सब चीज़ें हैं, तो हमें जो चाहिए वो ले लेते हैं, रेट चाहिए और हमें N2 चाहिए, जस्ट लेट अस हैव दीज टू थिंग्स। तो इन दोनों को इक्वल कर दो तुम, ठीक है। यहाँ से R इज इक्वल टू डेल्टा N2/H2 डाल दो, R मालूम है, यहाँ से तुम्हारा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन आ गया। सिमिलरली दूसरा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन का निकालने के लिए ऊपर से हमने निकाला था रेट लॉ, हाइड्रोजन के टर्म्स में क्या था, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन 1/3 डेल्टा H2 बाय दिस, तो वही हम यहाँ ले लेते हैं 1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा T। इसमें 3 वहाँ चला गया, दैट मीन्स रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज 3 टाइम्स R, तो 3 इंटू R करेंगे। दिस क्वेश्चन वॉज देयर ऑल्सो देयर इन इक्विलिब्रियम इन क्लास 11th, वेरी सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन एंड आ सकता है एग्जाम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिकम्पोजिशन ऑफ दिस लीड्स टू दिस, ये तुम्हारा रेट लॉ दे रखा है, द रेट ऑफ द रिएक्शन फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर। अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बात करें, रेट इज इक्वल टू दिस मच, ये भी रेट लॉ है और ये भी रेट लॉ है, दिस इज रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड दिस रेट लॉ इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। तो प्रेशर में तो ये रेट लॉ वो ये कह रहा है कि इफ़ प्रेशर का यूनिट हम बार लेते हैं, टाइम को मिनट्स में लेते हैं, देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो रेट के तो जो कोई यूनिट सेम रहते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम अगर हम लेते हैं, लेकिन अगर हम प्रेशर की टर्म में ले रहे हैं तो प्रेशर अपॉन टाइम हो जाएगा। तो रेट के यूनिट होगा प्रेशर अपॉन टाइम, दैट मीन्स बार पर मिनट, ठीक है। सी, तो रेट इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन टाइम, प्रेशर का यूनिट है बार अपॉन मिनट, तो ये तुम्हारा यूनिट ऑफ रेट हो गया। और रेट कांस्टेंट जो है उसका यूनिट इज़ नॉट फिक्स्ड, वो डिपेंड करता है ऑर्डर के ऊपर, फॉर डिफरेंट ऑर्डर वैल्यू ऑफ K विल बी डिफरेंट, यूनिट्स विल बी डिफरेंट। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट द यूनिट्स बाकियों के एक्सेप्ट K, ये हो गया बार पर मिनट, K को छोड़ देते हैं, दिस इज बार रेस्ट पर 3/2, सबको उधर ले आओ एक्सेप्ट K, तो ये तुम्हारा सिंपल मैथमेटिक्स है, दिस वैल्यू बार माइनस हाफ एंड मिनट माइनस 1, ठीक है, मीटर मिनट्स इनवर्स। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 5th is theoretical, so let us go to 6th question. क्या कह रहा है? Now this is very very important question and this type of questions generally comes in the exam. 1 marker में सीधा दोनों पार्ट दे देंगे and 2 marks का question and hardly to do anything in this, very easy. A reaction is second order with respect to a reactant. Second order with respect to a reactant का मतलब क्या है? Order is 2, तो आप उसको order 2 मान लें। How is the rate of reaction affected if the concentration of the reactant is doubled? अगर आप डबल कर रहे हो तो न्यू रेट की वैल्यू क्या आएगी आफ्टर डबलिंग? तो उसमें तो सिंपल है, क्योंकि रेट लॉ पहले पता होना चाहिए, हो ना। रेट लॉ पता होने के बाद यू कैन सिंपली डू इट। ना रेट लॉ हमें मालूम है कि वो कह रहा है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सपोज ए रिएक्टेंट है हमारे पास, मान लिया एनी रिएक्टेंट यू कैन टेक XYZ एनीथिंग, तो R इज इक्वल टू K E नॉट का स्क्वायर, नॉट मतलब इनिशियल, R नॉट मीन्स इनिशियल रेट। तो न्यू रेट तुम्हें निकालना है कब? व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल कर दिया, एंड न्यू रेट कब निकालना है? व्हेन कॉन्सेंट्रेशन हाफ, सेकेंड पार्ट है उसका, हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। नाउ न्यू रेट निकालने के लिए हम यहाँ पर न्यू रेट R हो जाएगा सेम K, सेम पैटर्न पे, बस नॉट नहीं आएगा उसमें, R इज इक्वल टू K A। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A, न्यू कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ट्वाइस दैट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो यू जस्ट डिवाइड बोथ ऑफ देम, डिवाइड करोगे तो K गया एंड यू आर लेफ्ट विद दिस। नाउ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A, A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A क्या हो गया? ट्वाइस, A की जगह हमने डाल दिया ट्वाइस A नॉट, स्क्वायर खोलेंगे। जनरली व्हाट स्टूडेंट्स डू, दे डू नॉट डू द स्क्वायर, सिंपली 2 ऐसे ही बाहर ले लेते हैं, बट क्योंकि इसका स्क्वायर में है तो स्क्वायर लेना ज़रूरी है, एंड स्क्वायर लेने के बाद इट विल बिकम 4, तो अब 4 आ गया, दैट मीन्स 1/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद न्यू R इज इक्वल टू 4 टाइम्स द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। देयर इज़ वन अनदर मेथड, अगर ये क्लियर नहीं, क्लैरिफाई नहीं होता तो वो दूसरा मेथड भी है, उसमें क्या करेंगे? स्टार्ट विद सेम R नॉट से, R नॉट इज इक्वल टू K A नॉट का स्क्वायर एंड न्यू रेट R इज इक्वल टू K A का स्क्वायर। अब इसमें A की वैल्यू पुट कर देते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? ट्वाइस A नॉट,
तो ए की जगह ट्वाइस ए नॉट, स्क्वायर खोल दो 4 हो जाएगा और 4 को बाहर ले लेते हैं, तो 4 ए नॉट, तो ये 4 जो है ये बाहर आ गया एंड दिस होल थिंग इज व्हाट, दैट इज आर नॉट, तो इसकी जगह आर नॉट डाल। दिस इज ईजियर मेथड एंड लेंदी नहीं है, थोड़ा सा छोटा है, शॉर्टर मेथड है, बट द आंसर इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही होगा, उसमें क्या करा है तुमने, उसमें कॉन्सेंट्रेशन तुमने हाफ ले ली है, राइट, कॉन्सेंट जो ए है दैट इज हाफ द सेम। वही वैसे पैटर्न पे करेंगे, मैंने दोनों मेथड्स करें, विच वन इज ईजियर यू कैन डू इट। यहाँ पर देखो आर नॉट इज इक्वल टू के ए नॉट का स्क्वायर, आर इज इक्वल टू के ए एंड ए की जगह हमने हाफ ए नॉट डाल दिया। अब हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा इसमें, ठीक है, तो 4 दिस थिंग, तो डैट मीन्स 1/4 हो गया, रेट इज इक्वल टू 1/4 आर नॉट, वहाँ पर 4 टाइम्स पहले करेंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, what does it says? In the pseudo first order reaction hydrolysis, this thing, calculate the average rate of the reaction between the time interval 30 to 60 seconds. एवरेज रेट निकालना है बिटवीन 30 to 60 सेकेंड इन दोनों के बीच में, और ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखिए इसमें तुम्हें दिया रखा टाइम दे रखा है सबका, और कॉन्सेंट्रेशन एस्टर की दे रखी है, एवरेज रेट फाइंड आउट करना है फॉर दिस टाइम इंटरवल एंड रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। यू नो आर इज इक्वल टू के एस्टर, वाई एस्टर क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है और क्योंकि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है रिएक्शन, तो इसलिए पावर 1 ली है, हालांकि स्यूडो है बट स्टिल वी विल टेक इट दैट 1। नाउ रेट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, यहाँ पर रिएक्टेंट एस्टर है तो माइनस चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर विद चेंज इन टाइम। अब इसमें टाइम क्या लेंगे हम, T2 माइनस T1 30 to 60 सेकेंड, तो 60 माइनस 30 हो जाएगा तुम्हारा। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा क्या था, देखो यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वॉज हाउ मच ऑफ एस्टर, इसमें 30 और 60 में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वॉज 0.31 एंड फाइनल इज 0.17, तो वही हम यहाँ डालेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.31, फाइनल 0.17, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम चेंज, तो ये हो जाएगा। एंड माइनस साइन ज़रूरी है यहाँ लगाना, माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट है एंड रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, तो दैट इज वाई माइनस साइन हैज टू बी देयर, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग। एंड द यूनिट विल बी पर सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट्स ऑफ के इज पर सेकेंड। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, के की वैल्यू निकालना है इसको, राइट, नो सॉरी क्वेश्चन नंबर के निकल गया। कैलकुलेट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, यस रेट कांस्टेंट भी निकालना है, तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए बिकॉज इट फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a बाई a माइनस एक्स। अगर हम 30 सेकेंड लेते हैं, हम सभी इंटरवल के लिए लेंगे, पहले हम 30 सेकेंड्स के लिए ले लेते हैं, फॉर 30 सेकेंड्स यू नो k इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये रहेगा, यू नो फॉर्मूला यू शुड ऑलवेज राइट बिकॉज फॉर्मूला कैरीज हाफ मार्क और 1 मार्क इन सम टाइम्स, यू नो, so if you don't know the numerical, at least writing the formula will fetch you at least half to 1 mark. So k is equal to 2.303 upon t log a by minus x, वैल्यू डाल दो t की, इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पुट इट ओवर एंड यू कैन सॉल्व। अब अगेन लॉग यहाँ पर लेना है, इट इज़ ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यू नीड नॉट राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो कैसे देखेंगे इसको, 17/7/4, ठीक है। अब आई एम नॉट गोइंग टू शो, I have already told how to take log in last chapter, so just go through the log table and in case you have any problem you can ask me. तो उसका log आ रहा है 0.2490 and this comes to be per second। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम इंटरवल 60 के ले लेंगे, बस टाइम चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल अगेन इट विल बी चेंजिंग, वाई इनिशियल एंड फाइनल विल चेंज, क्योंकि यहाँ देखो अब हम 60 अगर टाइम इंटरवल लेते हैं तो 60 के लिए तुम्हारा सॉरी इनिशियल तो तुम्हारा यही रहेगा 0.55, 30 सेकेंड्स के लिए इनिशियल ये था एंड फाइनल ये है। अब 60 सेकेंड में भी तुम्हारा क्या है, इनिशियल तुम्हारा वही रहेगा बट फाइनल विल बी दिस, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो तुमने स्टार्ट किया था वो लिया तुमने यहाँ पर, राइट, तो पॉइंट इनिशियल ये रहेगा और फाइनल ये आएगा, तो यहाँ पर इनिशियल 0.55 आ गया एंड फाइनल 0.7 आ गया। ये अगेंस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में 32/3/5 लेंगे, तो ये मैंने ले रखा है 32/3 5092 है, अंडर 5 7 है, ऐड करके तुम्हारा और सबसे आगे पॉइंट लगा दो,
सो वैसे तो एग्ज़ाम में बोर्ड में यू विल बी प्रोवाइडेड विद द वैल्यूज़ नॉट द लॉग टेबल्स, बट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स यू नीड टू फाइंड इट योर सेल्फ. सो एग्ज़ाम में गिवन होगा. नाउ दिस इज़ द आंसर पर सेकेंड. अब ऐसे ही नेक्स्ट 90 सेकेंड्स के लिए निकालेंगे. फिर 90 सेकेंड्स की अगर देखेंगे तो इनिशियल वैल्यू तो 0.55 ही रहेगी एंड फाइनल हो जाएगी तुम्हारी 0.085. तो 90 सेकेंड्स के लिए भी सिमिलर पैटर्न पे यू कैन फाइंड इट आउट. ये लॉग ले लिया है एंड दिस इज द आंसर. इफ़ यू सी इन ऑल द थ्री केसेस वैल्यू ऑफ के इज़ ऑलमोस्ट द सेम. ये देखो 1.96 10⁻² आया पहले में, वो भी 1.96 10⁻², 91.96 and 2, तो ऑलमोस्ट सेम है. तो डैट मीन्स सिंस के इज ऑलमोस्ट सेम इन ऑल द केसेस, इसका मतलब क्या है? इट फॉलो सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है. सो वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट. Now coming to question number 9, again this is very important and it has come lot many times in exams also. A reaction first order in A and second order in B. इसका मतलब क्या है कि A का पावर 1 है and B का पावर 2 है. तो you can find out rate law. If I write the differential rate equation, अब differential rate equation और rate law का मतलब एक ही होता है, ठीक है, both are the same thing. तो differential rate equation का मतलब है तुम्हारा rate law ही लिखने का है और उसकी जगह हम dx/dt भी लिख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो राइट इसमें dx/dt, ठीक है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिफ्रेंसिएशन यू कैन राइट. सो दिस इज योर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. a⁻1 एंड b⁻2. ये नॉट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और इनिशियल रेट है. प्रूफ क्या कहता है? नाउ सेकेंड पार्ट कह रहा है कि हाउ इज द रेट इफेक्टिव ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 3 times. अगर b को हम 3 गुना बढ़ा देते हैं तो हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन? अगर हम देखो b को 3 गुना बढ़ा देते हैं तो b को ये इनिशियल रेट है एंड न्यू रेट में क्या होगा? के ए नॉट ही रहेगा बिकॉज देर इज नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, वो उतना ही है. b में चेंज आया है तो b को हम b नॉट की जगह b लिख देंगे एंड जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ b 3b0 स्क्वायर करेंगे 9 बार आ जाएगा डैट, और ये पूरा r नॉट ही है तो r इज इक्वल टू 9 टाइम्स r नॉट. डैट में जो तुम्हारा रेट है वो 9 टाइम्स बढ़ रहा है. अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? सी इट्स सेइंग हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड. दोनों ए और बी को जब डबल कर दो, अगेन यहाँ पर तुम्हारा इनिशियल रेट तो वही रहेगा आर नॉट के ए नॉट बी नॉट. अब दोनों को डबल करने का है तो अब ए न्यू कॉर्न में ए आ जाएगा और ये बी आ जाएगा. ए नॉट की जगह ए, बी नॉट की जगह बी. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ट्वाइस ए नॉट एंड ट्वाइस बी नॉट. इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 2 4 + 8. तो डैट मीन्स ये तुम्हारा 8 गुना बढ़ गया रेट. एंड दीज माइंडेड इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड 100% या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में. तो जस्ट डोंट लीव दिस काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन, दैट विल फेच यू मार्क्स. Next question number 10. What does it say? It says reaction हो रहा है, concentration of A दे रखे हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, B दे रखे हैं एंड रेट दे रखे हैं. एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3. What is the order of the reaction with respect to A and B? मतलब तुम्हें रेट लॉ बताना है. रेट लॉ बताने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द रेट लॉ बी दिस थिंग. Let the rate law be k a raised power a and b raised power b. ठीक है, स्मॉल a एंड स्मॉल b ले लेते हैं ऐसी arbitrary and now we will be finding the value of small a and small b की क्या वैल्यू है इन दोनों का. ठीक है, सो अब उसमें देखने के लिए तुम्हें ये देखना पड़ेगा किसी एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है कांस्टेंट रहना चाहिए. जस्ट अगेन यू सी द क्वेश्चन कि किस में कॉन्सेंट्रेशन सेम है, कौन से एक्सपेरिमेंट में. ये देखो एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3. अगर 1 में देखें और 2 में देखें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सेम है, तो हमें यही चाहिए जिसमें एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन सेम रह रही है. तो ये एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सेम, सो वी विल टेक रेट ऑफ रिएक्शन 1 एंड रेट ऑफ रिएक्शन 2 एंड डिवाइड दैम. तो R1 by R2 करेंगे. R1 में क्या होगा? के उसका कॉन्सेंट्रेशन जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ए का रेस्ट पर ए, देन बी की कॉन्सेंट्रेशन जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रेस्ट पर बी, और नीचे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की सारी डिटेल्स डालें.
तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 रेस्ट पर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 रेस्ट पर बी, एंड जस्ट सॉल्व इट. ये पूरा कैंसिल हो जाएगा विद पावर्स, क्योंकि सेम है. के से के गया, पॉइंट से पॉइंट गया, तो तुम्हारे पास बच गया 3, राइट. अब यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे इसको, तो वो तुम्हारा 1 आ रहा है. अब 1 और पावर को करने के लिए बेस सेम होना चाहिए ना, तो बेस सेम करने के लिए एनीथिंग रेस्ट पर 0 इज़ 1, तो यहाँ पर हम 3 रेस्ट पर 0 करते हैं तो आंसर 1 आ जाएगा. तो अब अगर बेस सेम हो गए तो पावर विल बी सेम. दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स है ना. तो b इज इक्वल्स टू 0. तो ये तुम्हारा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b है. अब हम बात करते हैं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a. अब उसमें देखो कि b की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ सेम रह रही है ना. b ये रहा b, a में तो हमने देख लिया. नाउ यू हैव टू सी कि b की कहीं है सेम कॉन्सेंट्रेशन, कहीं भी सेम नहीं है. सो दिस इज थोड़ा सा डाइसी केस, क्योंकि इसमें सेम नहीं है. तो सेम होती तो कैंसिल हो जाता है एंड बिकम्स ईजियर. तो नेवरदलेस we'll do that way. You can take any the other reactant 1 and 2 तो ले लिया हमने. अब हम 2 and 3 ले लेते हैं, R2 and R3. R2 में डालेंगे तो सेम पैटर्न पे you just substitute and you put the value of B over here. B की वैल्यू 0 डाल देंगे तो anything रेस्ट पर 0 is 1. तो ये वाला टर्म तो गायब हो गया. अब तुम्हारे पास ये बच्चा, इसको सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करने के बाद हाफ आ रहा है रेस्ट पर A, और इधर तुम्हारा क्या आ रहा है जिससे, राइट. अब इसको हाफ को सॉल्व करना थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हम इसको उल्टा ले लेते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो 2/1 कर देंगे, और यहाँ पर 1.43/5.07, तो दैट कम्स आउट टू बी 2.8 आ रहा है. ठीक है. उसके बाद टेकिंग लॉग क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारा 2 रेस्ट पर ए है. अब इसको क्योंकि बेस सेम नहीं हो पा रहा हमारा, तो पावर सेम कैसे करेंगे, तो उसके लिए वी विल टेक द हेल्प ऑफ लॉग. तो दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा पहले. अब इसमें क्या है, तुम्हारा पावर इज ए, यू नो, पावर ए है. तो उसको जब हम पावर को लॉग में लेते हैं तो आगे आती है पावर, यू नो, ए log 2 हो जाएगा. ए log 2 इज इक्वल्स टू log 2.8. log 2.8 सिंपली यू विल टेक दिस कम्स आउट टू विद दिस, एंड यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा 1.48, 1.5, वही ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करके 1.5. तो जनरली दिस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स डोंट कम, बिकॉज इतना लेंथी कैलकुलेशन देते नहीं है, एंड देन लॉग वैल्यूज भी टिपिकल होती हैं. तो जनरली सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट गिवन इन एग्जाम. सो योर रेट लॉ, यू कैन फाइंड आउट द रेट. फाइनली यू हैव टू राइट द रेट लॉ. लिखना पड़ेगा तुम्हें कि क्या रेट लॉ तुम्हारा आया. ठीक है. ऐसे सिमिलर पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11. सी व्हाट डज इट से. वो ये कह रहा है कि ये 4 एक्सपेरिमेंट है, उसमें ए बी दे रखा है और रेट की वैल्यू दे रखी है. यू हैव टू डिटरमाइन द रेट लॉ, मतलब वही ए एंड बी निकालना है, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. अब उसमें भी अगेन यू हैव टू सी कि किस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सेम रह रहा है, कौन से एक्सपेरिमेंट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सेम रह रही है. यू सी ये एक्सपेरिमेंट 1 में तो नहीं है, एक्सपेरिमेंट 2 and 3. यू सी एक्सपेरिमेंट 2 and 3 जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सेम है. सो वी विल टेक R2 upon R3. तो लेट अस टेक R2 upon R3. और ऐसे ही अगर हम ये लेते हैं कौन सा, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी सेम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कहाँ सेम है, ये रहा 0.1. तो ये R1 upon R4, ये दोनों हम करेंगे. इसमें R1 upon R4, इसमें R2 upon R3. तो R1 upon R4 लिखते पहले. यू सी R1 upon R4. रेट लॉ हमने वही लिख लिया, जनरलाइज्ड रेस्ट पर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी पुट कर देते हैं, एंड देन आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग यू गेट 1/4 and 4. तो 1/4 पावर इज 1, तो बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएंगे. तो ए इज इक्वल्स टू 1. नाउ लेट अस टेक R2/R3. R2/R3 डालने पे, और उसके बाद यू कैन सब्स्टिट्यूट द ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज दे आर गेटिंग कैंसल्ड, यू नो. अगर नहीं भी हो रहा होता तो वी कुड हैव पुट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1. सो दिस हाफ बी दिस मच. अब इसमें 1/4 है, अब 1/4 है तो हमें बेस सेम करना है. तो 1/4 को इट कैन बी रिटन एज हाफ रेस्ट पर 2. तो बेस सेम है तो पावर विल बी सेम, तो बी इज इक्वल्स टू 2. नाउ रेट लॉ बिकम्स k a raised to power 1 and b raised to power 2, and it is overall order is 3. Now next part is you have to find out the value of k. अब value of k you can use any of the 4 experiment, कोई भी 4 एक्सपेरिमेंट यूज़ कर सकते हैं. आई हैव टेकन एक्सपेरिमेंट नंबर 1, वो इसलिए क्योंकि इसमें 0.1 कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगे.
इसमें जो लेंदी कैलकुलेशन हो जाएंगे. सो लेट अस चेक, अदरवाइज यू कैन टेक एनी एक्सपेरिमेंट, आंसर विल बी सेम. तो आर इज इक्वल टू वही फॉर्मूला, के रेस पर ए बी रेस पर 2, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए रेट इतना है, ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की कॉन्सेंट्रेशन, जस्ट सॉल्व एंड द यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर अ सेकेंड ऑर्डर, फॉर अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन, दैट मीन्स मोल स्क्वायर पर मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर एंड मिनट इनवर्स, क्योंकि मिनट में. ठीक है. So these types of questions are very easy. Then question number 12, अगेन सेम पैटर्न पे है. यू कैन डू इट योरसेल्फ. नो, पहले देखेंगे कहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सेम है, कहीं सेम है नहीं है. जो देखते हैं वेयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी सेम, यहाँ पर इन दोनों में R2 एंड R3 में सेम है, R2 4, R2 एंड R4. जस्ट डिवाइड देम, उसके अंदर कुछ वैल्यू आ जाएगा. देन यू पुट अवे है एंड यू कैन फाइंड इट आउट ऑल एवरीथिंग. क्वाइट इजी क्वेश्चन. Then calculate the half-life of the first order reaction from their rate constant. Again very very easy question. Rate constant दे रखा है और वहाँ से हाफ लाइफ निकालना है. एंड हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगेगा इसमें. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ? टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी, है ना. टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के एंड जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ के. जो भी यूनिट के होंगे वही यूनिट तुम्हारे टाइम के होंगे पर सेकेंड. सिमिलरली सेकेंड पार्ट में मिनट में है तो आंसर मिनट में आ जाएगा, आज में है तो आंसर आज में आ जाएगा. फॉर्मूला रिमेन्स द सेम इन ऑल ऑफ देम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ दिस थिंग इज दिस मच. तो टी हाफ दे रखा है. एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ दिस. अच्छा, नाउ व्हाट इज दिस 80%? वो कह रहा है कि आफ्टर इतना, ये तो हाफ लाइफ है, लेकिन एट पर्टिकुलर टाइम एक आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया कि 80% ऑफ कार्बन हैज़ बीन फाउंड इन एन एयर. तो तुम्हें एज निकालनी है कि अब तक उसकी एज कितनी है. दैट मीन टाइम निकालना है. यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम. नाउ अगेन इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. ऑल द क्वेश्चन आर ऑन द सेम पैटर्न. टी हाफ देने का मतलब होता है कि यू कैन कैलकुलेट के फ्रॉम दैट. तो टी हाफ से हम के निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से. के निकल गया. उसके बाद तुम्हें निकालना है टाइम. टाइम कब? जब तुम्हारे पास, अब ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय 80%? इट इज़ द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो बच गई आफ्टर टाइम टी. पहले तो 100% था उसमें कार्बन 14, लेकिन विद टाइम द कॉन्सेंट्रेशन उसकी कम होती गई कार्बन 14 की. और अब तुम्हारे पास फाइनली यू आर लेफ्ट विद 80% ऑफ ए. दैट मीन्स 80% ऑफ ए इज ए माइनस एक्स. तो जस्ट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास फॉर्मूला है कि टी इज इक्वल टू 2.303 के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स. जस्ट पुट द वैल्यू. यहाँ पर तुम्हारा 80% को हटाएंगे तो 100 आएगा, 100 ऊपर चला जाएगा तो 10/8 को डिवाइड कर लो 1.25. फिर ये तुम्हारा लॉग लेना है, 12/5 ये आ जाएगा एंड आंसर विल बी इन ईयर्स. राइट. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15. अगेन दिस इज uncommon question. Generally such kind of questions are not asked in exam क्योंकि ये ग्राफ बेस्ड हैं, बट स्टिल क्योंकि NCERT में है, so you need to do these questions. So let us see. plot concentration versus time तुम्हें प्लॉट करना है. देखो concentration तुम्हें दे रखी है तो सिंपल जिसको आती होगी मैथ वो कर ही लेगा. concentration y axis and time on x axis. So this is first part is over. Second part क्या कह रहा है? Find out the half life period from the reaction. For the reaction half life निकालना है. अब हाफ लाइफ तो हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? सी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो तुम्हारा था उसका 1.63 इंटू इतना ग्राफ से मालूम है. राइट. सी यहाँ पर जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है तुम्हारे पास 1.63 है. और हाफ लाइफ क्या होता है? When half of the reactant has converted into product, so that is called half life. तो अब इनिशियल इतना था उसको हाफ करके तो इतना तुम्हारे पास आफ्टर, that means half of the reactant has been converted to product. तो this is your concentration. अब इतना concentration पे यहाँ पर तुम एक्स्ट्रापोलेट कर लोगे. सपोज यहाँ आ रहा है ये, अब इसको एक्स्ट्रापोलेट करके जहाँ पर भी ये टाइम आया दैट इज योर हाफ लाइफ. राइट. क्लियर है या नहीं है? तो ये ग्राफिकली हमें निकालना पड़ेगा. तो इनिशियली तुम्हारे पास इतना कॉन्सेंट्रेशन था एंड हाफ लाइफ होता है जब आधे रिएक्टेंट बच जाए तुम्हारे पास. तो कॉन्सेंट्रेशन से तुम देख लो आधे रिएक्टेंट यहाँ सपोज ये
ये 0.8 सपोज है ना, 0.8 यहाँ पर आ रहा है, तो ग्राफ से आप देख लोगे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो भी टाइम है दैट विल बी कॉल्ड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं हम, सी इट इज सेइंग ड्रॉ ग्राफ बिटवीन लॉग एंड 205 एंड टाइम। अगेन दिस इज वेरी टीडियस, क्योंकि लॉग लेना पड़ेगा पहले। अब लॉग हर एक वैल्यू का लॉग लेना पड़ेगा एंड देन यू विल प्लॉट लॉग एन 205 वर्सेस टी। तो ये इस तरह का ग्राफ आ रहा है। तो इससे स्लोप से तुम क्या निकाल सकते हो, क्योंकि अब इससे मालूम पड़ेगा कि फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर, यू नो। सिंस द ग्राफ इज फॉर स्ट्रेट लाइन तो दैट मीन्स इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट लॉ तुम्हारा होना चाहिए आर इज इक्वल टू के रिएक्टेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़्ड पर 1। अब यहाँ से ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, यू नो, स्लोप। स्लोप तो सबको निकालना आता ही होगा। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके यू कैन फाइंड आउट द स्लोप एंड स्लोप इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303। तो जस्ट ये तुम पुट करके तुम्हारा स्लोप आ जाएगा एंड द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 क्वेश्चन। व्हाट डज इट से? The rate constant for a first order reaction is this much, okay? How much time will it take to reduce the initial concentration of the reaction to its 1/16th value? अब 1/16th value में करना है। अब 1/16th value का मतलब क्या हुआ कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज 160, ठीक है। इनिशियली यू स्टार्टेड ऑफ विद ए और अब तुम्हारे पास फाइनल जो है 116 बचा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भी एक्स दे रखा है या ए माइनस एक्स दे रखा है, यू हैव टू नोट डाउन दैट, नो। तो इसमें क्योंकि फाइनली तो ए माइनस एक्स कॉन्सेंट्रेशन 1/16 ऑफ हो जाएगा। फॉर्मूला वही रहेगा, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तुम्हारा log 16। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, log 16 जो है वो डैट इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। तो 1.6 इंटू 10⁻1 करेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा एंड जस्ट कैलकुलेट इट एंड तो इतना तुम्हारा सेकेंड आ गया, ठीक है।